Okay, hi, hello, good evening, my dear students. This is Ritika, your chemistry educator, and I welcome you all here at the YouTube session of ICSC board classes. Now, this session is going to be a very important as we are going to start a very important unit of grade 9 ICSE, which is the chemical changes and reactions, right? So, we are going to start today, and this is the very first class of this particular unit. Talking about me, I am Ritika. I have completed my engineering in electronics and communication and have been awarded as grade A in Cambridge English ESL. Now students, you can join our Telegram channel. तो अगर आपको ना थोड़ा सा होमवर्क या क्लास नोट्स में थोड़ा असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप लोग अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं so that you get updates about all the classes, all the batches and also all the ongoing offers here at an academy, है ना. तो जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, the link is provided to you in the description box. Kindly go and join it. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about chemical changes and reaction, and this is going to be our very first session जिसमें हम लोग एक introduction लेंगे कि क्या होता है chemical changes, what is meant by changes to be very precise, and what are the characteristics of chemical change. ये दोनों टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं. So I hope that you are with me. And if you're having any problem or if you're having any confusion in any of the thing that we study today, you can get back to us. Okay, let us study about chemical change. अभी chemical change से भी पहले हम लोग जानेंगे, we need to know what is meant by the word change, right? तो ये तो secondary I'm sorry, secondary thing हो गया chemical change. But first of all, let us try to understand what is the word change means. Okay, तो change मतलब, if I need to explain you in the very easy word, change को हम बोल सकते हैं transformation, है ना. change मतलब कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है. हो सकता है उसका शेप चेंज हो रहा है, हो सकता है उसका साइज चेंज हो रहा है, हो सकता है उसका कलर चेंज हो रहा है, इट माइट बी पॉसिबल इट्स स्टेट इज चेंजिंग. तो कोई भी किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ चेंज. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट चेंज इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास टू कैटेगराइजेशन हो सकता है. द वेरी फर्स्ट कैटेगराइजेशन कैन बी अ फिजिकल चेंज and the second one can be a chemical change. तो ये तो हो गया हमारा categorization A. Okay, next categorization हो सकता है हमारा on the basis of its reversibility, है ना. मतलब कि वो वापस से हमें पुराने स्टेट में मिल सकता है या नहीं. So on the basis of reversibility we can have reversible change and irreversible change. Okay, तो ये होंगे हमारे different types of changes. Okay, now before moving on to chemical change, हम लोग try करेंगे कि ये सारे changes की definition हमें clear हो, इन सारे changes का example हमें clear हो. Okay, so that there is no confusion. Let us talk about the physical change first. Okay, just a minute. Yes. So let's talk about physical change. अभी क्या होगा ना, फिजिकल चेंज का मतलब है कोई भी चेंज जिसमें कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. ओके, कोई भी चेंज होगा तो जिसमें अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ physical change. So if I need to define it, it can be defined as the changes in which no chemical reaction is involved.
ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ पीस ऑफ पेपर, मैंने उस पेपर को क्या किया, आई हैव जस्ट टेयर दैट पेपर. ओके, तो क्या हुआ, पेपर ऑफ कोर्स इट हैज बीन टॉर्न. ओके, लेकिन यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम नहीं देख सकते. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. तो वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज. इफ आई टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड इफ आई क्रम्बल इट, ओके, उसको क्रम्बल कर दिया, शेप चेंज हो गया, बट अगेन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फिजिकल चेंज. ओके, वाटर पड़ा हुआ है. ओके, इफ इट इज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी वाटर जो है इवेपोरेट हो गया है. ओके, नेक्स्ट इज इफ आई break any thing. Okay, if I'm having a glass and if I accidentally drop it, वो क्या हो गया, वो टूट गया. But in all these conditions there is no chemical reaction involved. मतलब कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उस सब्सटेंस का वो चेंज नहीं हो रहा है. So we can also tell that chemical composition is not changed or is not altered. ये हो जाता है हमारा physical change. So if I talk about a physical change, how it can be defined? A physical change is a change in which no chemical reaction is involved and in which the chemical composition of the substance is not changed, is not altered. Examples can be crumbling a paper, tearing a paper, dropping a glass. So all these come under the category of a physical change. I'm sorry. नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज. ओके, अभी केमिकल चेंज, द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग दैट समथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स इज हैपनिंग ओवर हियर इन दीज टाइप ऑफ चेंजेस. तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ चेंजेस इन विच द केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व. ओके, केमिकल चेंजेस में क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे. ओके, एंड ओवर हियर इन द केमिकल चेंजेस क्या होगा, जो भी सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन है, दैट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन गेट्स ऑल्टर्ड, है ना. तो ये क्या होता है, हमारा केमिकल चेंज होता है. Okay, for example, if I take any particular acid, okay, उस acid का मैं reaction करा देती हूँ base से, तो हमें क्या मिलेगा, we will be getting a salt and we will be getting water. तो यहाँ पर क्या हुआ, acid और base का हमने chemical composition change कर लिया, उनको react कराया और उनका जो properties है which were existing before, they have completely been changed. So यहाँ पर this comes under the category of a chemical change. If we are baking a cake, है ना, केक अगर हम लोग बेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, केक के डो से हम लोग बेक कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज केक. तो डो की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी और जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी. व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द केमिकल चेंजेस हैव टेकन प्लेस और उसकी वजह से वी हैव गॉट द अदर प्रोडक्ट. ओके, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. टॉकिंग अबाउट द अदर कैटेगराइजेशन, तो हमारा जो दूसरा कैटेगराइजेशन है, व्हाट इज इट? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारे पास अगेन टू चेंजेस होते हैं. फर्स्ट होता है रिवर्सिबल चेंज. नाउ talking about what do we mean by a reversible change, the word itself will be telling you the meaning. reversible मतलब होता है जो कि वापस से रिवर्स हो सके. okay, for example if I tear a paper, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो पेपर टेयर हो गया है, लेकिन अब हम उसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, तो that will not be a reversible change. अगर हम रिवर्सिबल चेंज की बात करें, इफ एन आइस इज मेल्टिंग, ओके, आइस मेल्ट होकर क्या हो गया, इट विल टर्न इनटू
वाटर, है ना, आइस ने मेल्ट होकर वाटर में फॉर्म हो गया, बट सॉरी, दिस वाटर इट कैन अगेन बी टर्न इनटू दी आइस। वापस से फ्रीज कर दो तो वो वाटर वापस से आइस बन जाएगा। तो ये जो चेंज है ना, ये वापस से रिवर्स हो सकता है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। Okay, so what is a reversible change in terms of definition? It can be defined as the change which can be reversed. वापस से जिस substance से हमने start किया था, if we can get the same substance, we can say that it is the reversible change. Okay, so this is the definition of reversible change. And the next categorization on the basis of reversibility, it is irreversible change. तो what is meant by irreversible change? यहाँ पर ये जो change है, ये क्या होगा ना, ये वापस से हम reverse नहीं कर सकते. Okay, so talking about in terms of definition, it can be defined as the change which cannot be reversed. Okay, talking about a very simple example, we prepare tea, we prepare coffee. Okay, अभी हमने टी बना दिया है, हमने टी को स्ट्रेन कर दिया है. Is it possible कि उस टी में से हम लोग टी लीव्स अलग करें, शुगर अलग करें, मिल्क अलग करें, वाटर अलग करें? So this thing is absolutely not possible. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ from milk, टी लीव्स, शुगर, वाटर, हम लोगों ने पूरा ही नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया विच इज अ टी, और उस टी से हम लोग ये चारों सब्सटेंस वापस से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, तो ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ चेंजेस: फिजिकल, केमिकल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. ओके, नाउ इस चैप्टर में हम लोगों को फोकस करना है ऑन केमिकल चेंजेस. राइट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑफ कोर्स केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन. तो हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट माइट लीड टू अ केमिकल चेंज. ओके, क्या कंडीशंस नेसेसरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these are the things that we are going to focus on, and I hope you're with me. If there is any confusion, you could let me know. हाँ जी, बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ. तो अभी अभी हमने पढ़ा है व्हाट इज अ केमिकल चेंज. ये एक टाइप का परमानेंट चेंज होता है. ओके, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स से हमने क्या बना दिया, हमने पूरा उनको वी हैव कुक्ड दैट वेजिटेबल. तो अब उस कुक्ड वेजिटेबल से हम लोग जो हमारी रॉ वेजिटेबल है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना. तो दैट बिकम्स अ केमिकल चेंज, एक तरह का परमानेंट चेंज हो जाता है. ओके, अभी वो परमानेंट चेंज हो क्यों रहा है? बिकॉज द केमिकल कॉम्पोजिशन इज ऑल्टर्ड. ओके, तो उस सब्सटेंस का, जैसे कि हमने टी का एग्जांपल लिया था, वहां क्या हुआ था ना, मिल्क का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, टी का बिल्कुल अलग हो जाएगा, टी लीव्स का अलग है, ओके, एंड टी का वापस से अलग हो जाएगा. सो पूरी जो है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सब्सटेंस बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ केमिकल चेंज. और हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग वन और मे बी मोर प्रोडक्ट्स. Just a minute. Yes, so what we are going to get, we are going to get one or more products, one or more substances जिनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट होगी. So one or more substances with different properties are obtained. ओके, तो ये होता है हमारा केमिकल चेंज. एक तो परमानेंट चेंज होगा, एक उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी.
नेक्स्ट इज वन और मोर सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा जरूरी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी और जिससे बनाया है उसकी प्रॉपर्टी सेम हो, तो वी विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एंड ज्यादातर क्या होता है, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके, बैटर से केक बना दिया, केक से बैटर नहीं बनेगा। वेजिटेबल्स को कुक कर दिया, उस कुक्ड वेजिटेबल से रॉ वेजिटेबल नहीं मिलेगी। ओके, डो से चपाती बना दिया, चपाती से डो नहीं मिलेगा। सो दीज आर द केमिकल चेंजेस दैट वी सी नॉर्मली इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर केमिकल चेंज में जो है हमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वी विल मोस्टली सी सम और द अदर काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई होप दैट यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई है। ओके, इफ देर इज एनी सिंगल थिंग विच इज नॉट रियली क्लियर, यू कुड प्लीज 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 लेट मी नो। अब हमने एक नया वर्ड अभी अभी डिस्कस किया है विच इज केमिकल रिएक्शन। Okay, so let us try to understand that what is the meaning of chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें कि जो हमारे सब्सटेंसेस है जिन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, तो हाउ वी कैन डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग chemical bonds of reactants। ओके, और क्या हो रहा है, एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। न्यू बॉन्ड किसमें फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट। ओके, न्यू सब्सटेंस पूरी तरह से फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट ए। ओके, ए का जो बॉन्ड है, ए और बी इस तरह से बॉन्डेड है। ओके, एंड देन वी आर हैविंग सम सी और डी। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ए और बी का, ये एक तरह से ब्रेक हो जाएगा, सी और डी का ब्रेक हो जाएगा। ओके, और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। अभी वो नए बॉन्ड कैसे भी हो सकते हैं, इट माइट बी ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड डी, बी एंड सी। ओके, ए बी एंड सी, any single or any type of reaction is possible. Okay, अभी ये कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, we are going to learn in our further lessons. Okay, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और नए बॉन्ड जो है, लेट सपोज ए और सी का बॉन्ड बन रहा है, नए बॉन्ड बन रहे हैं। Okay, so this is meant by chemical reaction, breaking chemical bond of reactants and making new bonds which are defined as the product. ओके, अभी हमने एक और नया वर्ड यूज किया है विच इज केमिकल बॉन्ड। यस, क्या होता है केमिकल बॉन्ड का मीनिंग, कैन एनीबडी लेट मी नो? केमिकल बॉन्ड, व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल बॉन्ड? हाँ जी, सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो वी कैन से दैट केमिकल बॉन्ड इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। और क्या काम है केमिकल बॉन्ड का, इट्स वर्क इज टू होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। अभी H2O का मॉलिक्यूल है ना, H2O, तो कुछ इस तरह से H2O का मॉलिक्यूल होता है। ओके, यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, व्हाई दे आर टुगेदर, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हाइड्रोजन इधर जा रहा है ऑक्सीजन इधर जा रहा है, उड़ क्यों नहीं रही है? बिकॉज देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन देम। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन उड़ता नहीं है, हाइड्रोजन उड़ता नहीं है, दे स्टे टुगेदर इन अ बॉन्ड। सो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स दैट holds the atoms of a molecule together.
ओके और किस टाइप का फोर्स है, ऑब्वियसली इट विल बी दी अट्रैक्टिव फोर्स। ओके ये होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। ओके तो अभी तक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल चेंज, इनफैक्ट द टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल चेंज इन अ बिट डिटेल सॉरी, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्ड। ओके तो ये कुछ डेफिनेशंस है which are very very important for you to understand before we move further in this chapter, and I hope that ये सारी definitions अच्छे से clear हो गई हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, conditions necessary for a chemical change। अभी जो chemical change है उसको for this chemical change to take place there has to be some type of conditions। okay? चाहे तो हम लोग उनको पास में ला रहे हैं, चाहे तो हम लोग उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी है ना, तो कोई ना कोई कंडीशन तो ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी सो दैट अ केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस। ओके तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच कंडीशन वन बाय वन। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आती है, it is mixing, or we can also say it is a close contact। okay so the very first condition it could be mixing or close contact, मतलब कि दोनों सब्सटेंस को या तो मिक्स कर दो या दोनों को पास ले आओ। ओके द रिएक्शन कैन टेक प्लेस। अभी इसमें अगर इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आयोडीन और फॉस्फोरस का। क्या होगा ना, आयोडीन और फॉस्फोरस को अगर आप लोग पास ले आए तो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अभी थिंक अबाउट इट, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो क्यों रहा है? व्हाई? बिकॉज आयोडीन और फॉस्फोरस को हम लोगों ने मिक्स किया है, या फिर उनको उनकी प्रॉक्सिमिटी है जो हम लोग उनको थोड़ा सा पास लेकर आ गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग। ओके तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी हमें वी आर राइटिंग दैट देयर इज दिस एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ओके तो यहाँ पर द मिक्सिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द कंडीशन। Similarly, if I am taking lead nitrate and potassium iodide, okay, तो lead nitrate हो गया हमारा PbNO3 whole twice प्लस potassium iodide हो गया हमारा Ki। इन दोनों को अगर हमने रिएक्ट करा दिया, okay, तो हमें क्या मिलेगा? We will be getting potassium iodide and just a minute, sorry, potassium iodide को हमने कर दिया तो हमें potassium nitrate मिल रहा है and lead iodide। ओके तो अब यहाँ हमें कैसे पता पड़ेगा द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? यहाँ जो लेड नाइट्रेट होती है इट इज बेसिकली व्हाइट इन कलर एंड दिस पोटेशियम आयोडाइड इट इज आल्सो व्हाइट इन कलर। लेकिन ये जो लेड आयोडाइड मिलेगा हमको, ये क्या होगा? इट विल बी येलो इन कलर। ओके तो ये भी दोनों चीजें कैसे बन रही है? बिकॉज ऑफ दिस क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स किया या फिर इनकी we have brought these things together, it has led to a chemical reaction, कोई chemical changes हुए और color का change हो गया, okay, because of the reactions which have taken place। next आता है हमारा solution। तो अभी कुछ केसेस में क्या होता है ना, अगर आप सॉलिड सब्सटेंसेस को लेकर मिक्स करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके तो हमें क्या करना है? हमें उन सब्सटेंसेस को मिक्स करना है ईदर इन देयर एक्वस स्टेट या फिर उनके मोल्टन स्टेट में। ओके तो या तो उनमें वी मिक्स द वाटर और वी मेक देम इन देयर मोल्टन स्टेट, तो हो सकता है या होता है देयर इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके तो अगर हम लोग बात करें एग्जांपल की, तो ऑक्सैलिक एसिड के जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं,
ओके, और सोडियम कार्बोनेट, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम वाटर का सोल्यूशन दे देंगे तो दे विल बी रिएक्टिंग वेरी वेल. Same case happens with sodium chloride and silver nitrate. तो यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड इट इज एक्वस फॉर्म, सिल्वर नाइट्रेट इट इज इन एक्वस फॉर्म. और अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग सिल्वर क्लोराइड. इसका हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग सोडियम नाइट्रेट इन दी एक्वस फॉर्म. ओके, तो ये क्या हुआ, अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को सॉलिड फॉर्म में लेंगे, यहाँ हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा. द रीजन इज कि कुछ रिएक्शंस दे ओनली टेक प्लेस इन द मोल्टन और इन देयर एक्वस स्टेट. समझ में आया यहाँ तक? आई होप दैट एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर. नहीं है, प्लीज प्लीज लेट मी. थर्ड हमारा आता है हीट. Okay, so some reactions do not even take place when we are bringing them into their aqueous or their molten state. उनको थोड़ी अलग टाइप की एनर्जी की जरूरत होती है, so they take place only when we heat them. Okay, ज्यादातर जो है decomposition reactions होते हैं. अभी if I talk about the copper carbonate, 1 minute. Yes, तो if I take copper carbonate, ये होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में. ओके, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म. ओके, अभी पड़ा तो कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होता नहीं है, राइट? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट लेड नाइट्रेट, इसे भी हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट लेड ऑक्साइड, वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वी गेट ऑक्सीजन. तो ये जो सब्सटेंस है इट इज फर्दर ब्रेकिंग इनटू 3 सब्सटेंसेस. और वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग सम टाइप ऑफ कंडीशन. और वो हमारी कंडीशन क्या है, वी हैव प्रोवाइडेड इट विथ हीट. ओके, तो ये हमारी कुछ 3 कंडीशंस थी. नेक्स्ट, मूविंग ऑन to next condition, it can be light. Okay, तो now students there are some reaction जो कि light के presence में ही they move towards their completion. Okay, तो some reactions they take only in the presence of light. और उन reaction को हम लोग क्या बोलेंगे, we call them as photochemical reactions or maybe photolysis. Okay, so these are the type of reactions. Okay, तो जो भी reaction light के presence में हो रहे हैं, we call them as photochemical reaction or photolysis. Okay, and यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल है सब्सटेंस के, वो क्या कर रहे हैं, लाइट की एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड एक्टिवेट हो रहे हैं एंड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये जो प्रोसेस है प्लांट्स का टू मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज they are getting the energy in the form of sunlight. तो वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उनको फ्रॉम एयर, देन उनको वाटर मिल रहा है. ओके, और इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हमें क्या मिल रहा है, इट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, है ना. अभी इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं. सो दिस विल बी योर बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, तो अभी ना ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अगर यहाँ पर हमारे पास लाइट नहीं होगा तो दिस रिएक्शन वुड नॉट बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कंप्लीशन. करेक्ट, इसीलिए हमें यहाँ पर लाइट एनर्जी का जरूरत होता है. ओके, सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ये क्या करते हैं, दे आर रिएक्टिंग and they are forming hydrogen chloride.
यहाँ पर ये कंडीशन है वापस से कि वी नीड डिफ्यूज्ड सनलाइट. ओके, तो डार्क में तो ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट होता ही नहीं है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा ना एक्सप्लोजिव हो जाता है ये रिएक्शन, तो वी नीड डिफ्यूज काइंड ऑफ सनलाइट फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस. ओके, so this is the function of light in some reactions to take place. Okay, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, okay just a minute. After that the fifth point is electricity. Abhi what do we mean by electricity, or I mean how the reaction take place in the presence of electricity. तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, decomposition हो जाता है. Okay, तो it is only when the electricity is passed through them. Okay, इन reactions को हम लोग क्या बोलेंगे, these type of reactions, just a minute. Yeah, these type of reactions which take place in the presence of electricity, they are known as electrochemical reactions. ओके, तो ये क्या होंगे, दे प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अभी बात कर रहे हैं हम वाटर की. ओके, वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, इट विल बी टेकिंग प्लेस ओनली व्हेन वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो दिस इज आवर H2O. हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्या मिला हमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, तो डिकम्पोजिशन हो गया. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, इसमें भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम भी अलग हो जाएगा एंड क्लोरीन भी अलग हो जाएगा. ओके, तो ये दोनों जो है डिकम्पोज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टन और एक्वस स्टेट. राइट, तो ये हो गई हमारी फिफ्थ कंडीशन. ओके, तो अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स सिक्स्थ कंडीशन, लेकिन उससे पहले देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल टू नो. तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड स्टडी, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप. ओके, एंड ओवर देयर you can attend these free classes which are the special classes. Okay, and you can learn from your favorite educators. उसके बाद we are also having poll options. तो poll क्या है, these are the MCQs. Okay, तो हर एक सेशन में you have certain MCQ जिसमें कि you get the options and you can select the option as per your understanding. Okay, and you can clear your doubts if you are having any. ओके, तो अगर आपको कोई स्पेशल क्लास अटेंड करनी हो तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन अटेंड दोज क्लासेस. करेक्ट. अभी बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स. तो अगर आपको यू हैव टू स्टार्ट और यू हैव टू गो फॉर अ होल कोर्स, आपको फुल ऑन पावर पैक स्टडी मटेरियल चाहिए, तो यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, अभी प्लस सब्सक्रिप्शन के ना अपने बहुत सारे फायदे हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. उसके बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, यू हैव दिस अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दोज कोर्सेज. सारे एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, और नॉट जस्ट द नॉर्मल क्लासेस, आपके पास रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हो रहे हैं, आंसर राइटिंग सेशंस भी हो रहे हैं. आपका पूरा सिलेबस इस तरह से कवर हो रहा है, और आपको हमेशा अपने जो एजुकेटर्स है उनकी गाइडेंस मिलती रहेगी. स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा सारा, और रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जिससे कि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं. ओके, नॉट ओनली जस्ट एमसीक्यू, वी आर ऑल्सो हैविंग सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जिससे कि आपकी जो है आंसर राइटिंग, उस पर आपकी जो है कमांड, इट कैन इंक्रीज. So talking about Unacademy Plus subscription prices, you can select any particular duration. 3 month का कर सकते हो, 9 month का, 18 month का, 36 month का.
To get this and you can use my code. So this is my code जो कि आपको क्या करेगा, it will give you 10% discount. Okay, जैसे ही आप लोग हायर ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, you can see your per month cost is decreasing. So you can go for it as per your understanding, as per your convenience. अब हम लोग बात करते हैं about the sixth point, which is pressure. Now some of the reactions they take place only when a certain amount of pressure is applied to them. Okay, अभी अगर हम बात करें मर्करी क्लोराइड की which is HgCl2 and पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको क्रश कर रहे हैं एक मोटा में and we are getting what, we are getting the mercuric iodide and potassium chloride. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, this reaction is proceeding towards completion only when we are providing it with certain pressure. बड़ा ही famous जो है process है for the manufacturing of ammonia. Okay, तो वहां पर क्या हो रहा है, we take nitrogen, we take hydrogen, और ये हमें क्या देता है, it gives us ammonia. लेकिन ये reaction तभी complete होगा when we are providing it the pressure approximately about 200 atmosphere. Okay, तो ये reactions में क्या है, pressure is very important. अगर आप pressure नहीं apply करते हैं तो हो सकता है this reaction does not get complete, वो पूरी तरह से complete हो ही नहीं पाए. Okay, तो ये कुछ condition है. Next condition है हमारा कैटलिस्ट. अभी कैटलिस्ट कैसे चेंज करता है उससे पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैटलिस्ट होता क्या है. ओके, तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. ओके, और इनका काम क्या होता है, दे आर यूज्ड टू ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, ये जो है हमारे रिएक्शन का रेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अबाउट देम दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ओके, तो ये खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब कि रिएक्शन के एंड में भी आपको जितना आपने कैटलिस्ट लिया था उतना का उतना वापस से मिल जाएगा. ओके, ये पूरी रिएक्शन में कहीं भी दे डू नॉट टेक पार्ट, बट इनके होने से हमारे रिएक्शन का रेट या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. ओके, तो अगेन टॉकिंग अबाउट ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट. फर्स्ट होता है हमारा positive catalyst. अभी what do we mean by positive catalyst? ये क्या करता है, it is used to accelerate the rate of reaction. Accelerate करना मतलब कि ये रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, मतलब कि रिएक्शन जो है पहले जो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा था अब वो कितनी देर में हो जाएगा, इट वुड गेट कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स. ओके, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो व्हाट वी आर गेटिंग वाटर एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ पर मैंने यूज कर लिया मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा ना, मेरे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. ओके, द रिएक्शन विल स्टार्ट टू टेक प्लेस फास्टर देन यूजुअल. ओके, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमारी बॉडी में ना एंजाइम्स होते हैं. यस, एवरीबॉडी माइट बी नोइंग कि हमारी बॉडी एंजाइम्स पर ही चल रही है. ओके, तो एंजाइम्स भी एक एग्जांपल है पॉजिटिव कैटलिस्ट का. लेट्स सपोज हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे. ओके, तो क्या होगा ना, व्हाटएवर फूड वी आर ईटिंग, ओके, तो इट वोंट बी डाइजेस्टेड. एंजाइम्स क्या करते हैं,
कोई भी हमारी बॉडी के जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, दे टेक प्लेस इन देम एंड दे मेक देम टू रिएक्ट फास्टर। ओके, तो यही जो खाना अभी 2 to 3 या 4 आवर्स में जो डाइजेस्ट हो जाता है, इफ देयर वर नो एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो वही चीज डाइजेस्ट होने में इट वुड हैव टेकन मंथ्स और मे बी ईयर्स। ओके, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल और सॉरी नेक्स्ट कैटेगरी इज नेगेटिव कैटलिस्ट। अभी बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि नेगेटिव कैटलिस्ट इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ सॉरी रिएक्शन। ओके, जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देगा। अभी हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रही है। ओके, वहीं पर अगर मैं यूज करूं फॉस्फोरिक एसिड, ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्शन है वो धीरे हो जाएगा, इट विल बी स्लो। तो सेम रिएक्शन हम लोगों ने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स यूज किए। मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन बढ़ रहा है, जल्दी हो रहा है, और फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन धीरे कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट। देयर इज वन मोर थिंग स्टूडेंट्स दैट वी नीड टू नो, दैट इज promoters. So I'm sure many of you might have already heard about promoter. अभी कैटलिस्ट क्या करता है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शंस को ऑल्टर करता है ना, या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर उस रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर रहा है। प्रमोटर जो है क्या करेगा, इट इज affecting the catalyst. Okay, so we can say or we can define promoter as it is the substance which is used to improve the efficiency of the catalyst. Okay, प्रमोटर का काम रिएक्शन पे कुछ नहीं होगा, प्रमोटर का काम होगा केवल कैटलिस्ट। ओके, तो वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, उसको अच्छा करेगा, ताकि कैटलिस्ट जो है अच्छे से रिएक्शन में अपना जो भी पार्ट है पूरा कर सके। ओके, बट इफ यू थिंक कि अगर किसी रिएक्शन में लेट्स सपोज कि हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ प्रमोटर यूज कर लिया, वी थिंक कि नहीं यार रिएक्शन तो है जो है इट विल बी कंप्लीटेड फास्टर, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज प्रमोटर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हमारे पास एक कैटलिस्ट नहीं हो। प्रमोटर डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है, इट ऑलवेज नीड्स द कैटलिस्ट टू हैपन। ओके, अभी हम लोगों ने बात किया था द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट। सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन होकर बना रहे हैं अमोनिया। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, वी हैड टेकन दी कैटलिस्ट आयरन। ओके, यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट है वो होता है आयरन, लेकिन अगर हम लोग मोलिब्डेनम यूज कर लेते हैं साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोलिब्डेनम, इट इज अ प्रमोटर एंड आयरन इट इज अ कैटलिस्ट। ओके, तो अगर हमें इस रिएक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, या फिर आई कैन से if I want this reaction to take place faster, I will be using catalyst. लेकिन if I want कि नहीं बहुत अच्छे से हो, तो catalyst की भी हम लोग efficiency increase कर सकते हैं by using a promoter. Okay, so I hope that this thing is very much clear to you. If there is any confusion, kindly let me know. Now students, there is also one more thing which is sound energy. ओके, तो कुछ रिएक्शन जो है दे ऑल्सो टेक प्लेस इन
the presence of sound energy, मतलब कि okay, it might sound very strange to you, but कुछ reaction ना sound energy को absorb करके भी they proceed towards completion. Okay, बात करें example की तो we are having acetylene. Okay, तो acetylene क्या करता है, it breaks into carbon and hydrogen, और वो कैसे break करेगा, by absorbing sound energy. Okay, so yes, strange it is, but yes, some reactions they do take place by absorbing the sound energy. Okay, तो I hope यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हो. We are going to revise whatever we studied, but उससे पहले let me tell you some very important things. तो as I told you कि हमारी जो है प्लस सब्सक्रिप्शन की prices as I already discussed, तो आप लोग जो है you can go for any particular duration as per your requirement. Okay, and then you can use my code RITIKACLIV. तो ये जो है मेरा एजुकेटर कोड है जो कि आपको देगा पूरा 10% डिस्काउंट. ओके, you can go for it, you can go for 3 months, 6 months, 12, 24, whatever you like, you can go for it. Next is upcoming batches. तो ये जो है हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं अभी अभी फॉर ग्रेड 10, दैट इज ग्लेडिएटर्स विच इज द ऑल सब्जेक्ट बैच. ओके, एंड फॉर ग्रेड 9 इट इज गार्डियंस विच इज अगेन ऑल सब्जेक्ट बैच जो कि 1 जून से स्टार्ट हो चुका है. ओके, एंड यू प्लीज सी द एजुकेटर्स केयरफुली, ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ ग्रेड 9, आपको मिलेगा द सब्सक्रिप्शन ऑफ ग्रेड 10, 11 एंड 12 एब्सोल्युटली फ्री. तो ये भी एक बड़ी ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि यू कैन अवेल इट. नेक्स्ट इज कम्युनिटी. अभी कम्युनिटी क्या है ना, इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप. ओके, जो कि आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. डाउनलोड करिए फ्रॉम द प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर द अनअकैडमी लर्नर ऐप. ओके, लॉग इन करिए एंड आप किसी भी एजुकेटर की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. अभी कम्युनिटी ज्वाइन करने के क्या एडवांटेजेस हैं. इफ योर एजुकेटर इज पोस्टिंग एनी अपडेट कि ये क्लास है या फिर हम लोग ये टेस्ट लेने वाले हैं, ये पोल सेशन लेने वाले हैं, यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स. उसके बाद इफ द एजुकेटर्स आर पोस्टिंग द नोट्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल, आपको वो भी एक्सेसिबल होगा. ओके, और आप अपने एजुकेटर्स को डायरेक्ट फीडबैक भी दे सकते हैं थ्रू दी पोल्स. ओके, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कम्युनिटी, आप लोग सबसे पहले तो डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड लास्ट थिंग इज बग्स बाउंटी. सॉरी, तो बग्स बाउंटी क्या है? दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स. इफ यू सी एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस इश्यू को क्लेम कर सकते हैं. Okay, report कर सकते हैं, sorry, and you can claim your price. Okay, so there is this form which is provided in the description, you can use that. Okay, तो डिस्कस करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज. We started with the chemical changes and reaction. First हमने पढ़ा था physical change. तो physical change क्या होता है? This is the type of change in which no chemical reactions take place. Okay, कोई भी chemical reaction नहीं होगा, substance का जो भी chemical composition है वो alter नहीं होगा. Next हम लोगों ने पढ़ा था, just a minute, yeah, next हम लोगों ने पढ़ा था chemical change. Okay, तो what do we mean by a chemical change? केमिकल चेंज आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस जिसमें कि केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस का वो अल्टर हो जाता है. ओके, केमिकल रिएक्शंस दे डू टेक प्लेस, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज टू हैपन. देन वी लर्नड अबाउट द रिवर्सिबल चेंज. तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड. मतलब कि हमें वो जो पहला वाला स्टेट है वी कैन गेट इट बैक. द एग्जाम्पल कैन बी एज सिंपल एज मेल्टिंग ऑन दी आइस. तो आइस से वाटर बना, वाटर से वापस से आइस बन जाएगा इजी, तो वो हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल चेंज.
After that, it is irreversible change. Irreversible change क्या होगा? These are the changes which cannot be reversed. For example, if we are taking a dough, we are preparing the cake, okay, from the batter, तो क्या हो जाएगा? केक से बैटर नहीं मिलेगा. Okay, so these type of reactions, they are known as irreversible changes. Okay, इसके बाद we learned about chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दीज आर दी चेंजेस, ओके, जिसमें क्या होता है, पुराने जो केमिकल बॉन्ड है किसी भी सब्सटेंस के, वो ब्रेक हो रहे हैं और नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं. ओके, एंड देन वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. ये एक फोर्स है which keeps the atoms of a molecule together. Okay, atoms को बांध कर रखता है, and therefore it is also considered as an attractive force. Okay, उसके बाद we focused on to the conditions which are necessary for any chemical change to take place. तो कुछ changes, कुछ conditions जो हमने देखी थी. First थी हमारी mixing, किसी भी substance को when we mix तो chemical change हो सकता है. Then we learned second is solution. Okay, so कुछ reactions they only take place when they are in the aqueous form, when they are in the molten form. उसके बाद it is heat. When we are providing heat, the reactions can take place. Then we are talking about light. Okay, so कुछ reactions जो है light की presence में ही they will proceed towards completion. And इस type के reactions को हम लोग क्या बोलेंगे? Call them as photochemical or photolysis reaction. Okay, इसके बाद some reactions they take place in the presence of electricity और इन्हें हम लोग बोलेंगे electrochemical reactions. After that it will be pressure. Pressure apply करने पर ही कुछ reactions they will take place. And the last one was catalyst. Catalyst क्या होता है? It is a substance which does not take part in the chemical reaction, but it can alter the rate of the chemical reaction. Two type of catalyst पढ़ा था हम लोगों ने, positive catalyst, negative catalyst. Positive catalyst क्या करता है? Reaction का rate increase कर देता है. Negative catalyst क्या करेगा? Reaction का rate decrease कर देगा. Okay, यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी about the promoter. तो promoter क्या होता है? It is the substance which is used to increase the efficiency of a catalyst. Okay, तो अगर catalyst नहीं होगा reaction में तो promoter अपना काम नहीं कर पाएगा. It will always require the catalyst to function upon. So these are the things that we have covered. I hope that you have got every single thing जो कि हम लोगों ने आज cover किया है. कुछ भी समझ में नहीं आया हो, please let me know. Okay, and I hope that you all have subscribed to this channel. अगर नहीं किया है तो फटाफट से करिए. Press the bell icon ताकि जब भी कोई अपडेट हो क्लास की you get notified. And if you like the session, please press on like button, share it, and we will be meeting in the next class जिसमें I'll be bringing with me some more important content and we're going to study about that. Okay, तो तब तक के लिए keep studying, keep learning, keep enjoying and wait for the next session. Thank you everyone. Take care.